الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا ببركاتهم وامددنا بمزيد چل رہی ہے ہمارے اوپر ان سازشوں کو دیش کو نابود عطا فرما آمین ہماری ماں بہنوں کی حفاظت عطا فرما آمین ہماری ماں بہنوں کی حفاظت عطا فرما آمین اس دن کی مسلمانوں پر رحم و کرم عطا فرما آمین اس دن کی مسلمانوں پر رحم و کرم عطا فرما آمین ہر ایک بچے کے بازوؤں میں حضرت علی جیسی قوت عطا فرما آمین ہر ایک بچے کے بازوؤں میں حضرت علی جیسی قوت عطا فرما آمین اسرائیل کا آج جو سندل یہاں پر منایا گیا ہے یہ کون سے سال کا سندل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سید محمد عبد القادر لقاء اللہ شاہ قادری قدس اللہ العزیز کا 175واں عرس مبارک ہے جو ماشاءاللہ بنگلور میں 300 سال ہوا حضرت تشریف لا کر. پہلے بنگلور کی آبادی تقریباً 2000 کی تھی، تب آپ بنگلور کو تشریف لائے. سب جنگل بیابان تھا. کئی کفار جو ہے آپ کے ہاتھ میں ایمان افروز ہوئے ماشاءاللہ، اور کئی آپ کی کرامتیں ایسے ہی ماشاءاللہ کی جو ہے جب کبھی بھی آپ ذکر و اذکار میں بیٹھا کرتے تھے کہ آپ کے جسم کے پورے ٹکڑے ہو کر پھر واپس مل جاتے تھے. کہ آپ کا ذکر کرنے کا طریقہ اتنا بہترین تھا کہ اللہ کے اس میں اتنا گم ہو جاتے تھے کہ بازو کیا ہو رہا کیا نہیں وہ پتہ نہیں چلتا تھا. پیر و مرشد کا تو حال یہ تھا ماشاءاللہ، آپ کے مریدین اتنے جذبے میں ذکر و اذکار کرتے تھے. آپ کے مریدین 5 میٹر کی پگڑی یا 7 میٹر کی پگڑی یا 11 میٹر کی پگڑی باندھ کر ہری پگڑی باندھ کر ذکر و اذکار کرتے تھے. جب ذکر و اذکار کرتے تھے کوئی بنڈا بھی اگر لے لگا کے سر کے پاس رکھتے تو بنڈا پھٹ جاتا تھا مگر سر نہیں پھٹتا تھا. اتنا جذبے میں اور ماشاءاللہ اتنے جلال میں ذکر و اذکار ہوتا تھا ماشاءاللہ آپ کے مریدین کے ساتھ. یہ جو مسجد آپ کی جو نظر آ رہی ہے آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے جو 300 سال پرانی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کی حیاتی ماشاءاللہ تقریباً 122 سال جیے ہیں. اور آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام سید محمد عبد الرحمن شاہ قادری ہے. تو کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ آپ کا تعلق جو ہے بغداد شریف سے ہے جو پیرانے پیر کے حکم سے ادھر تشریف لائے. سر آج جو عروس یہاں پر دیکھنے کو ملا، شہر میں بہت سے عروس ہم نے دیکھے ہیں، تاشے باجے نعرے چیخیں، لیکن یہاں پر جو ہے بہت الگ ہی طریقے کا، ایسا کیوں؟ دیکھیے شریعت میں بالکل تاشے، یہ ناچ گانا، یہ اللہ معاف کرے نہیں بولنا چاہتا ہوں، جو آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ لفنگا پانا شریعت میں نہیں ہے. شریعت وہ ہے جو ہمارے کو ادب و احترام کے ساتھ بزرگان دین کا عرس منانے کے لیے کہا جاتا ہے. اب ہمارے جو لکڑ شاہ بابا کا جو آپ نے جو اپنے آنکھوں سے جو عرس مبارک دیکھا ہے یہ ہمارے پردادا سرکار کے زمانے سے، یعنی کہ جو ہے جب آپ بغداد شریف سے، جب جامعہ نظامیہ سے، بغداد شریف میں مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، وہاں سے جو ہے کامل الفقہ بھی تھے، کامل الادب بھی تھے، کامل التفسیر بھی تھے، کامل الحدیث بھی تھے، شیخ المعقولات بھی تھے آپ میرے پردادا سرکار. وہاں سے پیرانے پیر کا حکم ہونے کے بعد جب یہاں پہ تشریف لے آئے تو آپ کی بڑی دختر نیک اختر سے آپ کا عقد ہوا. آپ کا میرے پردادا سرکار سید محمد میر سواد بادشاہ قادری، ہم انہی کی نسل میں سے ہیں ماشاءاللہ. یہ میرے پڑنانا ہوئے، میرے پردادا سرکار آپ کی بیٹی سے شادی ہوئے تو پڑنانا ہوئے تو میرے پردادا ہی ہیں. تب پردادا سرکار جب آئے تو ماشاءاللہ اپنے سسے صاحب کا جب عرس کرتے تھے تو ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا گھر ادھر تھا چامراج پیٹ میں برائن سرکل. وہاں سے جب اپنے مریدین کے ساتھ نکلتے تھے لنگے پیر درود شریف کے ساتھ اور دف کے ساتھ نکلتے تھے. یہ شریعت میں تھا. آج جو ایک دم لفنگا پنا جو غیر شرعی کام جو چل رہا ہے
नाच गाने, अली का नाम आती एकदम लफंगों की तरह हाथ उठाकर नाचते हैं, ये हमारी कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं है कि हजरत अली का नाम आए तो सर पे टोपी रहना है, बावजू रहना है, अदब और एहतराम के साथ। जब अली का नाम आता है तो हमारे सीनों में उठता है, जज्बा उठता है, एक हमारे दिलों में हजरत अली के नाम से जो है मोहब्बत जाग उठती है। अभी अभी मैंने एक कई दिनों से जो है, कई सालों से कई महफिलों में मैं जाया आया कर रहा हूं, अली का नाम का एक डिस्को हो चुका है। अली का नाम आती एकदम लफंगों की तरह, लुच्चे लफंगे की तरह हाथ उठाकर नाचते हैं, ये शरीयत में बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस वजह से हम लोग गैर शरई काम से बहुत महफूज है, इंशाल्लाह क़यामत तक भी महफूज रहेंगे। सर इस पर किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई अभी तक, जो बड़े उलमा हैं? मुसलमान खुद एक मुसलमान का दुश्मन है। अभी जो मैंने आपको अल्फाज बताए, अगर आप लोग वायरल कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, और मैं सर झुका के उसको मैं तस्लीम करता हूं। जब ये अल्फाज मैंने कह दिया तो माशाल्लाह मेरे कई दुश्मन हो जाते हैं। झूठी तारीफ करो वो सीना तान के चलता है, हकीकत बोल दो, सच इंसान को उसको दबाने की कोशिश। देखिए, एक कई सालों से मैं देख लेते आ रहा हूं, ये चीज प्रोपेगेंडा होना जरूरी है। आप प्रेस वाले हैं, आपके हाथ में पावर है, मेरे हाथ में पावर नहीं है, बस सिर्फ मेरे टॉकिंग पावर है। एक दौर ऐसा आज भी गुजर रहा है, एक जाहिल एक इमाम का तकरूर करता है। सबसे बड़ी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, एक जाहिल इमाम का तकरूर करता है, इमाम के ऊपर जोर डालता है कि इमाम क्या तकरीर करना क्या नहीं करना। देखिए, एक आलिम के ऊपर दबाव डालना, एक आलिम को खामोश बिठाना एक आलम का खामोश बिठाने के बराबर है। एक आलिम के ऊपर दबाव डालना एक आलम को दबाव डालने के बराबर है। एक आलिम के साथ बदतमीजी से बात करना एक आलम के आलम को बदतमीजी से बात करने के बराबर है। आज जाहिल सदर बनकर बैठे हैं, आलिमों को जो है बोलने का मौका नहीं देते। अगर बोल दिए तो हराम के ऊपर बोल दिए तो क्यों बोले, सूद के ऊपर बोल दिए तो क्यों बोले। आज मुसलमान सूद में अल्लाह माफ करे अच्छे उर्जी पे जा रहे हैं, सूद के कारोबार में अच्छे उर्जी पे जा रहे हैं, अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। ये बिल्कुल हराम की कमाई है। आज मुसलमान सोच रहा है कि बस निवाला कैसा खाया जाए और कैसा खत्म किया जाए, ये मुसलमान की आज ये हालत है। हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना, और एक चीज है, अभी आपने जो बात बताई, कई सारे जगह देखा गया है, ये गया है कि संदोल को जो है सियासी रुख दे देते हैं, कई सारी सियासी लोगों को बुलाते हैं, वहां पर उसको स्टेज को एक सियासी रुख बना देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं बोलता हूं, बुजुर्गान दीन की बारगाह में हर कोई उस दर का कुत्ता है, वहां पर सियासी नहीं चलना है। वहां पर कतई अगर सियासी चल रही है, वहां पे बुजुर्गियत और वहां पे जो हजरत आराम फरमा रहे हैं, ये दावे के साथ बोलूंगा, जो हजरत वहां पर आराम फरमा रहे हैं, उनकी नजर करम उठ जाती है। क्यों? एक अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है, उसके तुफैल से हमारा ईमान सलामत होना है, ये दुआ मांगी जाती है। जब अल्लाह के बारगाह में अगर हम लोग कई बुरुसों में मैं भी जाकर हूं, कर कोई आ जाए तो उसको जो है एकदम ऊपर चढ़ा देता है, ऐसा चढ़ाते हैं कि बहुत बड़ा तो रूम खाएं, नहीं, उसको उसकी जगह पे रखो। बारगाह से बाहर आके बाद मैं भी उसकी ताजीम करूंगा। क्यों? एक सियासतदान है, क्यों हमारा जो है एक कौम का एक लीडर है, वो एक कौम को लेके चल रहा है, तो मैं भी इज्जत करूंगा, मगर बारगाहों में नहीं। बारगाहों में सबसे पहले बारगाह की ताजीम, उसकी इज्जत अफजाई, उसका एहतराम करना जरूरी है। बारगाह के बाहर आए तो बाकायदा उसकी इज्जत करें, एक हमारे कौम का लीडर है, उसकी इज्जत भी करना है, उसकी मोहब्बत से सुलूक मोहब्बत से पेश भी आना है, और उसके साथ माशाल्लाह एक नरम गुफ्तगू भी बात करना है। बारगाह लक्कर शाह अलैहि रहमत और रिजवान का आज 175वां उर्स में हाजिरी का मौका मिला। बड़ी खुशी और मसरत के साथ, पुरसुकून इत्मीनान के साथ आज का प्रोग्राम हुआ। मैं वाकई मुबारकबाद देता हूँ हजरत अल्लामा पीर तरीक़त शहजादा हजरत ये शाह शमशुल हक खादरी अलैहि रहमा के साहिबजादे अमीरुल हक खादरी अलमारूफ नेमतुल्लाह शाह साहब का, कि वाकई उन्होंने अपने वालिद गिरामी के नक्श कदम पर चलते हुए हर साल की तरह जो कार्रवाइयाँ हजरत क़िबला करते थे, माशाल्लाह उस कार्रवाइयों को निभाते जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए और इनको और मजीद तरक्कियाँ अता फरमाए, इनके दर्जात और रतबात बुलंद फरमाए। इसी के साथ मैं एक और ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ कि बरोज़ इतवार इंशाल्लाह इस खानखा में पहली मरतबा बरोज़ इतवार
बाद नमाज मगरिब अजीम शान पैमाने पर जलसे यौम विलादत सरकार सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मनाया जा रहा है, जिसमें सरजमीन गुलबर्गा के सज्जादा और अकाबिर उलमा इकराम और नात खां हजरात शिरकत फरमा रहे हैं। हजरत की सरपरस्ती में ये जलसा हो रहा है। जनाब असलम वारसी साहब की हिमायत से माशाल्लाह ये जलसा बड़ी आलीशान पैमाने पर मनाया जाए। मैं गुजारिश करूंगा कि इतवार का दिन भी तमाम अहबाब शिरकत फरमा कर सरकार बड़े पीर की बारगाह में खराज अकीदत पेश करे। अस्सलाम वालेकुम। हजरत वाला पीर तरीक़त सैयद शमसुल हक साहब के साहबजादे सैयद अहमदुल्लाह साहब को आज के उर्स की मुबारकबाद, हजरत लक्कर शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हसीन मौके पर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हालात हाजिरा को मद्देनजर रखते हुए हमारे बुजुर्गों ने कभी भी जो है किसी का दिल नहीं दुखाया। तमाम फिरके के जितने भी लोग हैं तमाम को अपनी अपनी बारगाहों को खोल कर उन्होंने बुलाकर ये पैगाम मोहब्बत का दिया है। हम सिर्फ महदूद कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में, उर्स के प्रोग्रामों में सिर्फ अपने लोग रहते हैं, हमारे हिंदू भाई कोई नहीं आते। आप मज़ारात पर देखिए तमाम तबकों के लोग वहां पर आते हैं। इमाम मेरे जाफर सादिक का ये भी जो फातिहा हम करते हैं, यकीनन इस बात का वो प्योरली वेजिटेरियन फातिहा होती है, इसमें सिर्फ मुसलमान आते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदू भाइयों को बुलाने के लिए वो फातिहा रखी गई है ताकि आपस में हमारे मुल्क की इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहे, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। हमें चाहिए कि हमारे बुजुर्गों का पैगाम ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। हमारे बुजुर्गान दीन ने जो है तमाम लोगों को बुलाया है, कभी किसी से तफरीका नहीं फैलाया है। यही पैगाम अगर हम फैलाते रहेंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में और हमारों में, हम लोगों में सब इत्तेहाद पैदा होगा, हमारे मुल्क की और ताकत मजबूत होगी। ये मोहब्बत का पैगाम आप इस आपके चैनल के जरिए से तमाम को दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या मुर्शदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आज बरोज़ जुम्मा खानक़ाह लक्कर शाह में हाज़री का हमें जो है मौका मिला। ये बड़ी कदीम बारगाह है हज़रत लक्का शाह औलिया रहमतुल्लाहि ताला, जो अल-मारूफ लक्कड़ शाह के नाम से मशहूर है। ये बारगाह हमारे शमसुल उलमा पीर तरीक़ हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुल साहब क़िबला अलैहि रहमा की खिदमतें बड़ी रही इसके आस्थाने के ताल्लुक़ से। अब इसी तरह आपके नक्श कदम पर चलकर उनके फर्जंद अकबर पीर तरीक़ हज़रत नेमतुल्लाह शाह क़ादरी जो है बड़ी हुस्न खूबी के साथ तमाम लोगों को लेकर, मुरीदीन को लेकर ये आगे कारवां बढ़ रहा है। और जो है ऐसे बुजुर्गों की बारगाह की हाजिरी हम सब के लिए सादत की बात है। एक ज़रूरी ऐलान जो है आने वाली इतवार को 10 तारीख को एक पहली बार मैं समझता हूँ शहर बेंगलुरु में ये घर वाले हैं, ये गौसे पाक के घर वाले हैं, इन्हीं को ये ज़ेबा भी दिया है कि विलादत गौसुल वरा वल वरा जो है मनाई जाने वाली है। यहाँ पर तमाम मशाकीन आएंगे, बड़े बड़े उलमा किराम बाहर से भी आ रहे हैं। मैं तमाम आशिकान रसूल से, आशिकान गौसल आजम पीरान पीर से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कसीर तादाद में इसमें शिरकत करें। आमद रमज़ान की इससे बेहतर और क्या हो सकती है। गौसे पाक की याद से हमारा रमज़ान शुरू हो। मैं सबको जो इसकी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।